देखिए मोशन एक्चुअल में होता क्या है, चूँकि ये एक मैराथन क्लास है तो कंप्लीट हम लोग इसी में करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द अनदर क्लास. So we have to complete the entire syllabus in one class. So be serious and concentrate over here. What is motion? So we can say that if any object can change its position, if any object change its position with respect of what? So with respect of either time or a stationary object. Suppose कि there is a building and someone is standing here, and if he move up to here, then what we can say? We can say that this object A had moved against B. B is the building. Clear? So if any object change its position with respect of a stationary object, or we can say that with respect of time, then the body is said to be in motion. Clear? Now suppose if someone is motion, if someone is in motion, so it is very obvious that he will travel some distance. Doesn't matter कि he will travel 1 meter, 2 meter, 3 meter and whatever. So distance is what? The actual length of the path. Actual, suppose that this is the path. This is A, this is B. So he will go like this. Clear? He travel the entire path. The actual length of the path is called distance. Distance is represented by S. Distance is a scalar quantity. Distance is a because it has no direction. In a scalar quantity, direction is not defined. Direction is not defined. As per example, we can say that I have to go 5 kilometer, I have to go 10 kilometer, my speed is 60 kilometer per hour. In all these examples, there is no direction is mentioned. There is no direction is mentioned. So we can say that this is a scalar quantity. Now, if we take this distance and we find the shortest path between them, the shortest path is called displacement. So we can say that the shortest path between two fixed points, the shortest path between two fixed points is called displacement. Clear? And displacement is a vector quantity. And displacement is also a distance, but shortest distance. Clear? Displacement may be negative, positive or zero, but distance can never be zero or negative. Clear? Now if someone travels some distance, so for traveling he must take some time. If you have to go 10 meter and you start 10 a.m. and you are here by 10:15, so you have taken 15 minutes. You have taken 15 minutes. 5 minutes. Now 5 minutes is equal to 300 seconds. So we can say that 10 upon 300. So 0.33 meter per second is the speed. 0.33 meter per second is the speed. Clear? So we can say that speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. Whatever the distance we have traveled and whatever the time we have taken to travel that distance, the ratio of that one is called speed. So we can write here speed equal to distance upon time, and again it is a scalar quantity. Again it is a clear. Now average speed. Average speed is what? If someone travels two different distances, travel the entire distance with two different speeds, three different speeds. Clear? That time we have to find out the
average speed, and average speed is what? Total distance travel. Average speed is total distance traveled upon total time clear. Both have the same unit, that is meter per second. Both have the same unit, that is meter clear. Up to here anyone have any doubt? अब बच्चे बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट किया जाए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा किया जाए तो, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा किया जाए तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंजेज आएंगे तो क्या होगा? वो वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और बच्चा ये भी क्या है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी एक स्पीड ही है। क्या है? स्पीड है, लेकिन ये किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। किस में? तो स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी बराबर हो सकता है? हो सकता है एक कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, इन दैट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी सेम या इक्वल। क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वी कैन से दैट कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस final velocity, the arithmetic mean of initial and final velocity is called average velocity। अब आप लोग इसमें इनिशियल और फाइनल में कंफ्यूज कुछ लोग हो रहे होंगे। इनिशियल क्या होता है कि जिस वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट पहले कंटिन्यू है, कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उसको इनिशियल कहेंगे, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जिस वेलोसिटी को मेंटेन करेगा उसको क्या कहेंगे? फाइनल। सपोज कीजिए कोई स्कूटर चला रहा है, स्कूटर को चला रहा है, तो अगर वो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, कितने, और सडन रेड लाइट हो गया, क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी क्या होगी? रुक जाएगी। तो भी क्या हो जाएगा उसका? जीरो, क्योंकि पहले तो ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो जिस वेलोसिटी से पहले कंटिन्यू मूव कर रहा है उसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो वेलोसिटी उसका कंसीडर किया जाएगा वो, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो रेस्ट में स्टार्ट हुआ तो पहले उसका वेलोसिटी क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड। जब मूव ही नहीं कर रहा है तो यही होगा, तो यू हो जाएगा ये। लेकिन 5 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को क्या कर रहा है? एग्जिबिट कर रहा है। तो भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट के कंडीशन पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल, कि आइदर वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, आइदर वो मोशन में है या क्लियर। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट मीन्स व्हाट? इफ someone start with initial velocity
and v minus u upon t equal to acceleration. v minus u upon t equal to acceleration. Clear? And if acceleration gets negative, in that condition it is called retardation and deceleration. Clear? Now the mathematical proof of three equation of motion. We all know that the three equation of motions are, first one is v equal to u plus at, second one is s equal to ut plus, and third one is v square equal to u square plus. Clear? तो फर्स्ट, एज वी नो डैट कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट हियर at इक्वल टू v माइनस u. क्लियर? एंड u इज नेगेटिव ओवर हियर, इट विल कम दिस साइड एंड बिकम्स पॉजिटिव, एंड v रीअरेंज करेंगे इसको तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं. सेकेंड इक्वेशन कहता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बच्चा जब इसको प्रूफ करेंगे हम तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. और डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 और इनटू t. ठीक है? यहां पे लिखेंगे एलिमिनेट v यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v के जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस at और अपॉन इंटू t. बच्चा इसको अगर ऐड करेंगे तो 2u प्लस at अपॉन इंटू t. अगर इसको इंडिविजुअली अगर हम लिखें तो 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन इंटू 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल टू हाफ u प्लस हाफ at इंटू, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग. ये है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, यहां भी सेम कंडीशन लगाएंगे, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम. तो s इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू t. यहां लिखेंगे बच्चा एलिमिनेट t यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या पढ़े थे, v इक्वल टू u प्लस at पढ़े थे ना. तो v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t हो जाएगा. नाउ तो s क्या था, v प्लस u अपॉन 2, और इसको t को हम लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन a. लिखेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा बच्चा v प्लस u और इंटू v माइनस u अपॉन 2a. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये 2a इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 2a और a प्लस b इंटू a माइनस b. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा. तो ये क्या हो गया, 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर. अब इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अब जरा सा इसका ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए पहला ग्राफ क्या कहता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। किसका है? टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। किस पे? और डिस्टेंस को एस लिख रहे हैं हम, ठीक है। अगर कोई ग्राफ सिंपली सीधा चला जाता है, क्या? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे चला जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। किसको? ये दोनों समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि S1 डिस्टेंस T1 टाइम में, S1 डिस्टेंस T1 टाइम में कवर किया और S2 डिस्टेंस T2 टाइम में S2 डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि हर एक कंडीशन में स्पीड जो आएगा आपका क्या आएगा? सेम आएगा। समझ गए? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक कंडीशन में आपका स्पीड सेम नहीं होगा। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब जरा देख लेते हैं VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला कंडीशन, जब ये सिंपली इधर चला जाए तो इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा? जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, जो नया नया सीखा रहता है और जो बाइक चलाता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलाता है। समझे? अगर लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसे आ जाए, क्या है? अब देखिए कि ये स्लोप किसको शो करेगा? रिटार्डेशन को। किसको शो करेगा? रिटार्डेशन को। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए कि अगर कोई ये ग्राफ है, एक और यहाँ समझ लीजिए, अगर यहाँ पे टाइम t x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग v और ग्राफ हमारा पैरेलल चला जाए x एक्सिस के, तो इन दैट कंडीशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज। तो अब जो ये ग्राफ बना, जैसे इसमें y एक्सिस पे v है, इसका अगर नाम दे दें हम OABC, तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AB और BC। क्लियर?
अब ग्राफिकल प्रूफ ऑफ ऑल इक्वेशंस। तो बच्चा तीनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। इसका नाम दे दे OABCDE। अब यहाँ से यहाँ का जो वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये टोटल वेलोसिटी क्या है? और हम लोग जानते हैं स्लोप जो होता है VT ग्राफ का वो क्या होता है? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो टू प्रूव फर्स्ट इक्वेशन V = U + AT को प्रूव करना है हमको। क्या करना है? ठीक है, तो एक चीज देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? C के। तो CE हमारा क्या हो जाएगा? V के बराबर होगा। CE V के बराबर होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? CD ही होगा ना। तो CD = क्या हो जाएगा? CD = हो जाएगा CE - DE। CE - DE होगा। अच्छा, तो CD = क्या है? CE तो V है माइनस DE U है, क्योंकि इसके पैरेलल है। अब देखिए CD ये, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? CD/T के होता है ना। तो एक्सेलरेशन CD की क्या वैल्यू क्या हो जाता? AT के बराबर हो जाता। बस इस AT को यहाँ डाल देंगे तो ये किसके बराबर हो गया? V माइनस, अब U + AT हो गया = V, और V क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में आया? अब सेकेंड इक्वेशन को जरा देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा कहता है S = UT + ½ AT²। हाफ, तो बच्चा डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEO। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEO या OADE। रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो डिस्टेंस कवर्ड तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रीजन OACE, यही ना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE क्या होगा? OA × AD हो जाएगा। OA × और प्लस ½ × ट्रायंगल का क्या होगा? बेस × हाइट होता है, CD × हो गया। नाउ इसको तो S लिख देंगे। OA किसके बराबर है? U के बराबर है, और AD T के बराबर। हाफ CD अभी हम लोग निकाले हैं किसके बराबर? AT के बराबर निकाले हैं, तो AT हो गया, और AD फिर किसके बराबर है? T के। तो S = क्या हो जाएगा? UT + ½ AT। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बच्चे बात करेंगे V² = U² + 2AS। तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय दीज रीजन्स, यही ना होता है। ये जो एरिया कवर्ड हुआ यही ना डिस्टेंस है हमारा, ये वाला। आप लोग अपने कॉपी पे इसको ऐसे मत कर लीजिएगा सेट, ठीक है?
तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACE, OA, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में बच्चा क्या, CE प्लस OA, यही ना पैरेलल साइड है। और टाइम AD, हाइट क्या होगा किसी भी ट्रेपीजियम में, ये हाइट है AD, ठीक है। और ये S, तो S इक्वल टू क्या होगा, हाफ CE के जगह पे क्या होगा V, OA के जगह पे और AD के जगह पे T होगा। अब सेम यहाँ भी वही कंडीशन करेंगे, एलिमिनेट T यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से इसको अगर T का वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, V माइनस यू अपॉन A। सेम यहाँ यूज कर लेंगे, S इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू V प्लस यू, और T के जगह पे V माइनस यू अपॉन, यहाँ लिख देंगे S इक्वल टू 1/2A और A प्लस B A माइनस B, यानी कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे 2AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस, इसको रीअरेंज कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर जो होगा वो U स्क्वायर प्लस 2A S के इक्वल हो जाएगा। V स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2A S के इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। क्लियर। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आ रहे हैं, वो है सर्कुलर मोशन। क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है बच्चा, उसका डायरेक्शन हर समय चेंज होता है। जैसे इस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन इधर हो गया, अगर इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन इधर जाएगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन इधर आएगा। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जबकि लीनियर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप किसी स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं, तो जब तक आपका रिस्ट यहाँ से मूव कर रहा है तब तक उसका स्पीड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, वो घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने रिस्ट को रिलैक्स किया, उसका स्पीड क्या होगा, कम होते होते वो नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब उसको बराबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर पाथ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालने के लिए, अगर स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस क्या कवर्ड होगा, जो ये सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस सर्कल का कैसे निकालते हैं, 2πr, और 2πr अपॉन t क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हो जाएगा। स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन t। यहाँ तक क्लियर। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। चैप्टर क्लियर।